کے سامعین کو محمد حسین ظفر کا سلام پہنچے۔ آج کے خاص موضوعات تھے۔ شب قدر کی مقدس تقریب سعید وادی بھر میں منائی جا رہی ہے۔ آثار شریف درگاہ حضرت بل میں ہزاروں زائرین ہوئے ہیں جمع۔ وزیر اعظم نریندر مودی 19 اپریل کو کٹرا میں وندے بھارت ایکسپریس کا کریں گے افتتاح۔ عید سے قبل تاجروں نے آٹے اور چاول کی قیمتوں میں کیا اضافہ، عام لوگ پریشان۔ جموں میں پی ایچ ای ڈیلیویجروں نے 10 روز کے لیے احتجاج کیا مؤخر۔ وادی کشمیر میں محکمہ تعلیم کے اساتذہ کے تبادلوں میں ہو رہی ہے تاخیر۔ ہارڈ زونز میں کئی اساتذہ کر رہے ہیں پریشانیوں کا سامنا۔ اور بھی کئی موضوعات پر ہوگی بات آج کی شہر بین میں ایک وقفے کے بعد۔ ٹھیک میٹر FM 2 103.5 میگا ہرٹز کے علاوہ آکاشوانی کو پڑھ اور بدوا کے ساتھ ساتھ DTH اور آکاشوانی کے موبائل ایپ پر ایک ساتھ سن رہے ہیں۔ سامعین، نئی دلی سے ملی اطلاعات کے مطابق پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کا اجلاس آج جاری رہا۔ اطلاعات ہے کہ راجیہ سبھا میں وزیر داخلہ امت شاہ کے خلاف کانگریس کے چیف وپ جے رام رمیش کی تحریک استحقاق کی خلاف ورزی کا نوٹس راجیہ سبھا میں مسترد کیا گیا۔ راجیہ سبھا کے چیئرمین نے ایوان کو بتایا کہ جے رام رمیش نے ایک ترمیمی بل پر بحث کے دوران وزیر داخلہ امت شاہ کی طرف سے کانگریس لیڈر سونیا گاندھی کے بارے میں دیے گئے بیان پر اعتراض کیا اور اس سلسلے میں تحریک استحقاق کی خلاف ورزی کا نوٹس دیا ہے۔ اس نوٹس سے ایسا لگتا ہے کہ اس کا مقصد وزیر داخلہ کی شبی خراب کرنا ہے۔ چیئرمین نے کہا کہ وزیر داخلہ نے اپنا بیان دستاویزات کے ساتھ دیا ہے، اس لیے اس تجویز کو خارج کیا جاتا ہے۔ اس دوران لوک سبھا میں آج ممبر پارلیمنٹ شمالی کشمیر انجینئر رشید بھی موجود تھے۔ ان کو گزشتہ دنوں دلی کی ایک عدالت نے پیرول پر ایوان کی کارروائی میں شمولیت کی اجازت دی تھی۔ انجینئر رشید نے لوک سبھا میں بولتے ہوئے کہا کہ کرنا گریز اور کیرن کی سڑکوں کو قومی شاہراہ کا درجہ دیا جائے۔ انہوں نے ٹرانسپورٹ کے وزیر نتن گڈکری کی تعریف کی اور کہا کہ گزشتہ 30 سالوں کے دوران کشمیر کو ملیٹنسی سے بڑا نقصان ہوا ہے، اس لیے کشمیر کو مزید فنڈز فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے پیکیج دیا آندھرا پردیش اور بہار میں، لیکن اگر پیکیج کی ضرورت ہے وہ جموں کشمیر کو ہے، جو 30 سال سے ملٹنسی کی وجہ سے جہاں تباہی ہے، جہاں سب کچھ لٹ چکا ہے، اس کے بدلے میں جب آپ اس سال کے ایلوکیشن دیکھیں گے، آپ نے سر 1000 کروڑ ہمیں پچھلے سال کے ایلوکیشن سے کم کیا ہے، زیادہ نہیں دیا ہے۔ ہمارے CM صاحب شاید تھوڑا شرماتے ہیں کہنے سے، انہیں کیا ایشوز ہیں وہ ہمیں نہیں پتا، لیکن ہماری گزارش ہے کہ جموں کشمیر کو اپنا پورا شیئر دیا جائے۔ اور اکثر اوقات اس ہاؤس میں کہا جاتا ہے، باہر بھی کہا جاتا ہے، ڈبل انجن سرکار۔ پھر ڈبل انجن کیا ہوتا ہے؟ جب ہم وی آر آل انڈر اوتھ، پھر سارے لوگ برابر ہیں، ساری اسٹیٹ برابر ہے، سب لوگ برابر ہیں۔ وائی ول یو گیو پیکیج ٹو اسٹیٹس اینڈ ٹو ادرس ناٹ؟ تو میری یہ گزارش ہے کہ جموں کشمیر کو آپ پوری طرح سے ملٹنسی اسٹیٹ ہے، وائلنس اسٹیٹ ہے، آپ کے جو دعوے ہیں وہ بالکل غلط ہے۔ وہاں پر آپ ایک اسپیشل پیکیج دے دیجیے جموں کشمیر کے لیے، یہ ہماری گزارش ہے۔ جیسا کہ آنریبل ممبر صاحب نے کہا، گڈکری صاحب کے تو سارے فین ہیں ہر جگہ کام کرنے کے، تو ہماری ان سے یہ ریکویسٹ ہے، کیا آپ کا وبھاگ، آپ کی سرکار کپوارہ کرنا روڈ اور بانڈی پورہ گریس روڈ اور کپوارہ کیرن روڈ کو نیشنل ہائی وے کا درجہ دے گی، اور ان کی وائڈنگ کے لیے باقی چیزوں کے لیے آپ پراوڈھان رکھیں گے اور آپ اس کے لیے پیسہ ہمیں دے دیں گے۔ ممبر پارلیمنٹ شمالی کشمیر انجینئر رشید کی طرف سے اٹھائے گئے بعض سوالات کے جواب میں مرکزی وزیر نتن گڈکری نے ایوان کو بتایا کہ جموں کشمیر میں 105 ٹنلیں تعمیر ہو رہی ہیں اور فی الحال گریز کرنا اور کیرن کو قومی شاہراہ کا درجہ دینے کا منصوبہ زیر غور نہیں ہے۔ सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, प्रश्न तो केवल सीमित है और इन्होंने सन्मान्य सदस्य ने जो सवाल पूछा है वो जम्मू कश्मीर के बारे में है। मुझे बहुत खुशी है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई, तो विशेष रूप से जो बैकवर्ड स्टेट थे, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, उसमें प्रायोरिटी दी गई नॉर्थ ईस्ट को, उत्तराखंड को, हिमाचल को, जम्मू कश्मीर को। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही कि करीब 2 लाख करोड़ के काम हम जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं। 105 टनल बना रही है। पिछले बार अध्यक्ष महोदय मैंने आपको भी प्रार्थना की थी कि आशिया की सबसे बड़ी झोजिला टनल जो 12,000 करोड़ रुपए जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट थी, वो केवल 5,500 करोड़ में बनाकर 5वीं बार टेंडर हुआ, पैसे बचाकर उसका काम 70% पूरा हुआ है। ये कारगिल के पहाड़ी के नीचे है। और मैंने आपको भी आमंत्रित किया है कि सम्मान्य ये स्टेट ऑफ आर्ट वर्क है, आशिया की सबसे बड़ी टनल है, -8 डिग्री तक टेम्परेचर है और उस कठिनाई में हमारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। तो पार्लियामेंट की तरफ से आपके नेतृत्व में वहाँ एक बार आप आइए, ये मैंने आपको अनुरोध किया था। और ये जो
रोड बता रहे हैं उसमें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को भी हमने कश्मीर में काफी काम दिया है और विशेष रूप से कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, नॉर्थ ईस्ट के लिए हमने NHI DCL करके NHI जैसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है और वो अब जम्मू कश्मीर में 105 टनल का काम हम कर रहे हैं। केवल जम्मू से श्रीनगर के उस पर 36 टनल कर रहे हैं, उसमें से करीब 22 टनल पूरी हुई है। जो जम्मू से श्रीनगर आने के लिए 8-8, 9-9 घंटे लगते थे वो केवल अब 3-3.5 घंटे में हो जाएगा और कटरा से आकर डायरेक्ट दिल्ली तक पहुंच जाएंगे 6 घंटे में। तो मेरा अनुरोध है कि ये रोड अभी फिलहाल तो राष्ट्रीय महामार्ग नहीं है, पर आगे में ये सब काम पूरा होते समय इस बात का भी हम एक बार प्रीफिजिबिलिटी रिपोर्ट करके उसका अध्ययन करके फिर निर्णय करेंगे। मरकजी वजीर नितिन गडकरी का ऐवान में इंजीनियर रशीद के सवाल का जवाब। अब एक और मौसूल। सबिन उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल प्रोजेक्ट का फिलहाल इफ्तिताह मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल को करेंगे। इत्तलात के मुताबिक वजीर आजम 19 अप्रैल को कटरा रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर कश्मीर के लिए रवाना करेंगे। इस खबर की तस्दीक मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की है। वाज़ेह कि इस तकरीब पर वजीर आजम के हमरा रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव, मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वजीर आला मुरअब्दुल्ला, रुकन पार्लियामान और दीगर आला अफसरान मौजूद रहेंगे। इत्तलात के मुताबिक वजीर आजम दिल्ली से सीधे उधमपुर पहुंचेंगे, जहां वो दरियाई चिनाब पर तामीर किया गया दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल का मुआयना करेंगे। ये पुल जिला रियासी में वाक़ है, जहां रेलवे के इंजीनियर वजीर आजम को इस पुल के बारे में जानकारी फराहम करेंगे। अलबत्ता शहरवीन को जराए से मालूम हुआ कि फिलहाल श्रीनगर से दिल्ली डायरेक्ट ट्रेन चलाने का कोई मंसूबा नहीं है। अब मुसाफिरों को कटरा स्टेशन पर रेल बदलना होगी। वाज़ेह कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला लिंक प्रोजेक्ट कुल 272 किलोमीटर है, जिसमें 209 किलोमीटर पहले ही कमीशन किया गया है। इस वक्त बारामूला से संगलदान तक रेल सर्विस जारी है और वाज़ेह कि इस प्रोजेक्ट पर कुल 41,000 करोड़ रुपए खर्च आने का तखमीना है। सामीन, आज शब कद्र की तकरीब सईद मनाई जा रही है। आज पूरे जम्मू कश्मीर की मसाजिद, खानकाहों और ज़ियारतगाहों में शब बेदारी होगी। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब आसारी शरीफ दरगाह हजरतपुर में होगी, जहां आज सफर से हजारों की तादाद में लोग जमा हुए हैं, जबकि मखदूम साहब, ज़ियारत शरीफ खानियार और दीगर ज़ियारतगाहों में भी अकीदतमंदों की खासी तादाद मौजूद है। कल जुमातुल विदा भी मनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट सईद यासिर से। पूरे आलम के साथ साथ आज वादी भर में शब कद्र की तकरीब सईद निहायत अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। इस सिलसिले में अहम दरगाहों और बड़ी मसाजिद में शब-ए-दारी के खास इंतजामात किए गए हैं और अकीदतमंद रात भर शब-ए-दारी के दौरान दुरूद अज़कार और खत्मातुल मुअज़्ज़मात की मजालिस में मुहव्वर रहेंगे। वादी में शब कद्र की सबसे बड़ी तकरीब आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में मुनक्कद होगी, जहां नमाज इशा रात 10:30 बजे अदा की जाएगी। उधर आसार शरीफ जनाब साहब सोरा, शहरी कलाशपुरा, मीर सैयद याकूब साहब सोनवार, ज़ियारत मखदूम साहब, आस्तानी आलिया दस्तगीर साहब खानियार, खानकाई मौला श्रीनगर, आस्तानी आलिया सराई बाला में भी शब कद्र के बड़े इज्तिमात मुनक्कद होंगे। उम्मीद की जा रही है कि दरगाह हजरत बर और दूसरी मुकामात पर वादी के अतराफ अकनाफ से आए हुए हजारों लोग शिरकत करेंगे और उलमाए किराम शब कद्र की फजीलत और अहमियत पर रोशनी डालेंगे। इसी दौरान जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने आज तारीखी श्रीनगर के ईदगाह में तामीर किए गए नए मिंबर का इफ्तिताह किया। ये मिंबर 9 महीनों में तैयार किया गया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वादी की उनके जेरी निगरान मसाजिद और ज़ियारतगाहों में शब कद्र के सिलसिले में तमाम तर जरूरी इंतजाम किए गए हैं, ताकि ज़ायरीन को किसी भी मुश्किलात का सामना न करना पड़े। ट्रैफिक महकमे ने दरगाह हजरत बल और दूसरी जगहों तक ज़ायरीन को पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट के माकूल इंतजाम किए हैं और इस हवाले से निजी ट्रांसपोर्ट कंपनियों ने भी ज़ायरीन को दरगाह हजरत बल और दूसरी खानकाहों और दीगर मसाजिद तक ट्रैफिक के माकूल इंतजाम किए हैं। आसारी शरीफ दरगाह हजरतबल में नमाज इशा रात 10 बजे अदा की जाएगी। रिपोर्ट दे रहे थे
सईद यासिर। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर उमर अब्दुल्ला, पीडीएफ के चेयरमैन और साबिक वजीर हकीम मोहम्मद यासीन, अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी, जेडीयू के सदर जीएम शाहीन, सिविल सोसाइटी फोरम के चेयरमैन अब्दुल कोयुमानी, हकानी मेमोरियल ट्रस्ट के सरपरस्त आला सैयद हमीदुल्लाह हकानी, जनरल सेक्रेटरी बशीर अहमद डार, जमीयत हमदानी के सरबरा रियाज अहमद हमदानी ने शब कद्र पर लोगों को मुबारकबाद दी है। इधर किश्तवाड़ से मिली इत्तलात के मुताबिक मरकजी जामा मस्जिद में नमाज इशा आज रात 10:30 बजे अदा की जाएगी। सामीन, जम्मू में जारी पीएचई कैजुअल मुलाजमीन की हड़ताल आज वापस ली गई। बताया जाता है कि पीएचई के डेलीवेशन को आज सुबह महकमे के वजीर जावेद राणा की तरफ से बातचीत के लिए बुलाया गया था और इस बातचीत के पस मंजर में ही डेलीवेजन मुलाजमीन यूनियन ने 10 दिन के लिए अपनी हड़ताल मौखर करने का ऐलान किया। वाज़ेह है कि पीएचई मुलाजमीन कम अज कम उजरत एक्ट लागू करने, रिटायर हो रहे कैजुअल मुलाजमीन को मुआवजा और दीगर मुतालबात को लेकर काफी अरसे से अपनी जदोजहद जारी रखे हुए हैं और गुज़श्ता दिनों यूनियन ने जम्मू में काम छोड़ हड़ताल शुरू करते हुए मुजाहरे करना भी शुरू कर दिया था। आज यूनियन लीडर ने मीडिया को बताया कि 10 रोज के अंदर कोई पेशरफ नहीं हुई तो 7 अप्रैल को असेंबली सेशन शुरू होने के साथ ही उनका एहतजाज भी दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। पिछले जो डेलीवेजन ने जो लाठियां खाई तो आज उसका कहीं ना कहीं एक रिजल्ट हमको देखने को मिला। रात को हमें पीएचई मिनिस्टर जावेद राणा साहब की तरफ से इनवाइट किया गया था कि 8:30 बजे आप मेरे रेजिडेंस पे आओ, तो जिसमें हमारे मीटिंग में चीफ इंजीनियर जम्मू और हमारे तीनों एससी थे और 3 मांगों के ऊपर हमारे ज्यादा फोकस था। रेगुलाइजेशन पे तो कमेटी बनी हुई है और कमेटी हमारे साथ डिस्कस करेगी, लेकिन जो 3 मांगे हमारी थी, पेंडिंग वेजेस का इशू था, मिनिमम वेजेस को रिवाइज करना था और जो 60 साल के लोग रिटायर होकर घर जा रहे हैं वो कमेटी की रिपोर्ट आने तक क्या उनको हम स्टे कर सकते हैं या उनको कंपनसेशन देनी है, इसके ऊपर 1-2 दिन के अंदर अंदर मुझे लग रहा है कि वो डिसाइड कर लेंगे। तो इसी कुछ चीजों को देखते हुए और कल उमर साहब ने भी अपील की थी असेंबली के अंदर कि हमें काम पे लौट आना चाहिए और जनता भी त्राही त्राही कर रही है और आगे ईद आ रही है, ईद के साथ साथ नवरात्रे आ रहे हैं, तो इसीलिए जनता के हितों को देखते हुए हमने 10 दिन के लिए अपनी कॉल को डेफर किया है। हमने स्ट्राइक खत्म नहीं की है, प्रोटेस्ट हमारा कंटिन्यू रहेगा, जो हमारा रूटीन रहती है। तो 7 अप्रैल को हम एक बार फिर सड़कों पे नजर आएंगे। आगे गर्मी का सीजन आने वाला है तो फिर कितनी त्राही त्राही मचेगी ये खुद सरकार को सोचना होगा। अगर सरकार धोखा करेगी तो उसका नुकसान भी सरकार को उठाना पड़ेगा। हमारा टेंट लगा हुआ है, हम उखाड़ने वाले नहीं है जब तक हमारे साथ किया हुआ वादा पूरा नहीं होता। इसीलिए हमने आज ही स्पष्ट मंत्री साहब को कह दिया है कि अगर इन बिटवीन 10 दिनों के अंदर हमारा कोई मांग पूरी नहीं होती तो 7 तारीख का टाइम भी हमने उनको बता दिया है कि जैसे ही असेंबली 7 तारीख को शुरू होगी हमारी असेंबली सड़कों पर शुरू हो जाएगी। जम्मू में 10 रोज के लिए कैजुअल मुलाजमीन ने हड़ताल की मौखर। समीन, शबे बारात के मौके पर देर से मिली इत्तलात के मुताबिक मस्जिद बिलाल मिनी हाउसिंग कॉलोनी छानापुरा में मौलाना अफजल हुसैन शब कद्र की फजीलत बयान करेंगे और वाज़ो तबलीग फरमाएंगे। सीनियर ट्रेड यूनियन लीडर और एजेक के चेयरपर्सन एजाज अहमद खान ने अपने एक बयान में जम्मू कश्मीर सरकार बशमूल एलजी मनोज सिन्हा से अपील की है कि ईद उल फितर के पेश नजर सरकारी मुलाजमीन, कैजुअल और कॉन्ट्रेक्चुअल जुमरे के तमाम आर्जी मुलाजमीन की उजरतें ईद से कबल वागुजार कराई जाएं ताकि सभी लोग ईद की खुशियों में शामिल हो सकें और साथ ही बाजारों में भी रौनक बहाल कराई जा सके। इधर एजेक के तर्जुमान आला खालिद महमूद ने भी आरजी जुमरे के सभी मुलाजमीन, आशा वर्करों, एचडीएफ और दूसरी स्कीमों के आरजी वर्करों की उजरतें फौरी तौर वागुजार कराने की अपील की है और साथ ही ट्रेजरी में फंड्स की दस्तियाबी कराने को कहा है ताकि महीनों से रुकी पड़ी बिलों की अदायगी मुमकिन हो सके। पीडीपी के सीनियर लीडर और जिला सदर शोपियान हाजी गुलाम मोहिद्दीन वच्ची ने शोपियान जिले में दी तरक्की महकमे की तरफ से एमजी नरेगा और दीगर स्कीमों के तहत वर्करों और सप्लायर्स की अदायगी वक्त पर न किए जाने पर मायूसी का इजहार किया है। उन्होंने महकमे के आला अफसरान से फौरी मुदाखलत की अपील की है। गुलाम मोहिद्दीन वच्ची के मुताबिक माली साल 2023-24 की अदायगी भी नहीं की गई है जबकि वर्कर्स और सप्लायर्स को शदीद माली मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है। उन्होंने एलजी इंतजामिया से इस मामले में जरूरी मुदाखलत की अपील की है। साबिक वजीर सैयद अब्दुल रशीद ने ईद उल फितर और अयाम मुतबरका के दौरान इलाका ब्रंग कोकरनाग और डूरू शाहबाद में राशन, खांड और जरूरियात जिंदगी की चीजों की फराहमी यकीनी बनाने की अपील की है। सैयद अब्दुल रशीद ने बिजली और पानी की सप्लाई में माकूलियत लाने की भी गुजारिश की है। चेयरबीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। सामीन, रमजान मुबारक का आखिरी इश्ता जारी है जबकि ईद उल फितर को चंद ही दिन रखे हैं। इधर जम्मू कश्मीर में लोग ईद उल फितर की तैयारी में जुट गए हैं और
मुख्तलिफ बाजारों से ये शिकायत सामने आने लगी है कि दुकानदारों और ताजरों ने गिरा फरोशी का माहौल खड़ा कर रखा है। अवामी हलकों का कहना है कि पुलिस और इंतजामिया के चेकिंग स्क्वाड सिर्फ मेवा और सब्जी फरोशों की चेकिंग में मसरूफ हैं, जबकि दीगर ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में दुकानदारों ने भी इजाफा कर रखा है। इतलात के मुताबिक चावल और आटे की कीमतों में ईद से पहले ही ताजरों ने इजाफा कर दिया है। शोपियान के बाजारों में इंतजामिया के चेकिंग स्क्वाड भी मुतहरिक नहीं पाए गए हैं। एक रिपोर्ट फयाज वानी से। ईद उल फितर से कबली जनूबी कश्मीर के जिला शोपियान के मुख्तलिफ बाजारों में सब्जियों, मुख्तलिफ तवज्जात और बड़े पैमाने पर एशियाई खुर्दनी की कीमतों के इजाफे ने तारफीन की कमर तोड़ कर रख दिया है। अगर जिला इंतजामिया की तरफ से मार्केट चेकिंग का सिलसिला भी मरहलवार तरीके से जारी है, आप मुकम्मल रेट लिस्ट उनके पास दस्तियाब न होने के बाद नाजायज मुनाफाखोरों की हौसला अफजाई इस कदर हो रही है कि वो एशियाई जरूरत की कीमतों में बेतहाशा इजाफा करके तारफीन को दो हाथों से लौट रहे हैं। और ये वजह भी है कि मार्केट चेकिंग के बावजूद जमीनी सतह पर गिरा फरोशी में किसी किस्म की कमी देखने को नहीं मिल रही है। फ्रूट मंडी पारमपुरा श्रीनगर के अहदेदारों की जानिब से हाल ही में सब्जियों और मेवाजात की कीमतों की जो रेट लिस्ट मंजर आम पर लाई गई, तो बाजारों में इन कीमतों का नामो निशान ही कहीं नजर नहीं आ रहा है। अगर इस रेट लिस्ट पर नजर डाली जाए तो सब्जियों की कीमतें बिल्कुल मुनासिब नजर आ रही है और मज़कूरा रेट लिस्ट के मुताबिक आलू 14 रुपए फी किलो, पालक 8 से 10 रुपए फी किलो, प्याज 25 रुपए, टमाटर 15 रुपए फी किलो, बंदगोभी 16 रुपए, फूलगोभी 8 से 10 रुपए, गाजर 14 रुपए, कद्दू 10 से 12 रुपए, खीरा 13 से 15 रुपए फी किलो और मूली 11 से 12 रुपए फी किलो के हिसाब से मार्केट में दस्तियाब होनी चाहिए। मगर बाजारों में सब्जी फरोशों ने हैरत अंगेज तौर पर इसमें कई गुना इजाफा कर दिया है और यही तरीकाकार मेवा फरोशों और मुर्ग फरोशों ने भी अपनाया है। उधर पूरे जिले में करियाना दुकानदार हर हफ्ते एशियाई खुर्दनी की नई नई कीमतें सामने ला रहे हैं और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। पूरे जिले में करियाना दुकानदारों ने सबसे ज्यादा गिरा फरोशी का बाजार गर्म कर रखा है, क्योंकि जब कभी भी मार्केट चेकिंग होती है तो उस कार्ड का हदफ या तो सब्जी फरोश या मेवा फरोश होते हैं, जबकि किराना दुकानदारों को कभी हाथ नहीं लगाया जाता है। और यही वजह है कि मज़कूरा ताजर हर हफ्ते दालों, मसालेजात, ड्राई फ्रूट्स, खाने पकाने वाले तेल और दीगर लाजमी एशिया की कीमतों में इजाफा कर रहे हैं। ये तरीकाकार जिले के बाजारों में रेडीमेड गारमेंट के ताजरों ने भी अपनाया और ईद उल फितर से कबल ही बच्चों के मलबूसात पे कई गुना इजाफा करके वालिदैन को परेशानी के आलम में मुब्तला कर दिया है। उधर सरकारी राशन कार्डों पर जब से चावल के कोटे में कमी की गई, तब से जिला हेडक्वार्टर समेत जिला के दीगर मरकजी बाजारों में होलसेल और रिटेल डीलरों ने चावल के मुख्तलिफ अक़साम की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया और नाजायज मुनाफाखोर बिना किसी खौफ या डर के मनपसंद कीमतों पर चावल फरोख्त कर रहे हैं। काबिल जिक्र बात है कि एक तरफ लोगों की माशी हालत कुछ बेहतर नहीं है, वही दूसरी जानिब सार्फिन जब बाजारों का रुख करते हैं तो उन्हें रिकॉर्ड तोड़ महंगाई का सामना करना पड़ रहा है और इस पूरी अमल से लोगों की एक खासी तादाद शदीद ज़हनी इज़्तिराब में मुब्तला हो रही है और इन मौजूदा हालात में उनके लिए अब घर चलाना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। ये थे शोपियान से फयाज वानी। जम्मू कश्मीर की वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज कंगन जाकर बीजेपी के लीडर और साबिक एमएलए फकीर मोहम्मद खान के अहल खाना से ताज़ियत की। उनकी हमरा वजीर आला के मुशीर नासिर असलमानी, एमएलए गुरेज नजीर अहमद गुरेजी, एमएलए कंगन मेहर अली भी थे। वज़ीर के साबिक रुकन असम्बली गुरेज फकीर मोहम्मद खान ने 20 मार्च को तुलसीबाग श्रीनगर में वाक़या अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर मुबैना तौर पर खुदकुशी की थी। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है और तमाम ज़ायियों की छानबीन हो रही है। सामिन, महकमा स्कूल एजुकेशन कश्मीर में हार्ड जोन में तैनात टीचर्स, मास्टर्स और लेक्चरर्स काफी परेशान हैं। हार्ड जोन में जो असातिज़ा एटीडी के तहत 1 साल की मुद्दत के लिए भेजे गए थे, उनके 2.5 साल हो चुके हैं मगर उनकी घर वापसी नहीं हो रही है। इन असातिज़ा ने इल्जाम लगाया कि महकमा तबादलों में गैर जरूरी ताखीर का मुजाहरा कर रहा है, जिस वजह से गुरेज, मदसिल, केरन और करना में तैनात असातिज़ा काफी परेशान हैं। इस दौरान डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर जे नीतू ने आशाम शेरबीन को बताया कि एटीडी के तहत तबादलों की तैयारी हतमी मरहले में है और उम्मीद है कि अप्रैल महीने के अवाइल में ही तबादलों की फहरिस्त जारी की जाएगी। सभी महकमा जल शक्ति ने 21 मार्च 2023 को वाटर सप्लाई स्कीम गुजरियाल को पौड़ा का संग बुनियाद रखा। ये स्कीम द्रंगियारी से वाया करालपुरा, गुजरियाल और दीगर गांवों तक पहुंचती है, लेकिन 2 साल का अरसा मुकम्मल होने के बाद भी गुजरियाल वाटर सप्लाई स्कीम मुकम्मल नहीं हो पाई। गुजरियाल की आबादी सख्त मुश्किलात का सामना कर रही है। वज़ीर के फरवरी के महीने में शेरबीन ने यह मामला एडिशनल डेवलपमेंट कमीशन को पौड़ा मोहम्मद रूफ रहमान के साथ उठाया था, जिन्होंने यकीन दिलाया था कि 31 मार्च ईद तक इस स्कीम को मुकम्मल कराने की तमाम तर कोशिशें की जाएंगी। आज हमने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को पौड़ा मोहम्मद रूफ रहमान से रब्ता किया और पूछा कि 31 मार्च की
डेड लाइन आ रही है, काम कहां पहुंचा। उन्होंने बताया कि गुजरियाल स्कीम को मुकम्मल करने का वादा था और वादा पूरा हो रहा है। गुजरियाल की जो वाटर सप्लाई स्कीम है, ये 21 मार्च 2024 को इसकी संग बुनियाद रखी गई थी और करीब 2 साल अब हो गए ये लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट में था। लेकिन जो ही आपने मेरी नोटिस में लाया तो मैंने एग्जीक्यूटिव पीएचई और AEE जेई है सबको लाइन हाजिर कर दिया और पिछले 1 महीने से मेरे ख्याल में 21 फरवरी को आपने मुझे ये मेरी नोटिस में लाया और मैं इनके पीछे हूँ। चाबुक चला के मैंने इसको इनटेक मेन लाइन की टेस्टिंग करवाई, इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया, संप इसका फिल हो गया और वाटर टेस्टिंग जो भी इसकी वेल्डिंग या पाइप बिछानी थी वो सारा हमने मुकम्मल किया और 18 मार्च को ही हमने इसको कंप्लीट कर लिया। और जो भी पैच वर्क था वो 24 फरवरी की जो बर्फबारी हुई थी उसमें कोई डैमेज हुआ था वो भी हमने रेक्टिफाई कराया। बट एज ऑन डेट 25 मार्च को ये बिल्कुल गुजरियाल ए, गुजरियाल बी, वीडियो मोहल्ला और गनाई मोहल्ला की डिस्ट्रीब्यूशन पाइपें जो है वो फाइनल फिनिश हो गई है और जो पेंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन थी हमारी तीरीपोरा और इस्लामपुरा वो भी मुकम्मल हो गई। तो एज ऑन डेट वी कैन से जी इट इज रेडी एंड पीपल ऑफ गुजरियाल एंड द एडजेसेंट एरियाज आर विटनेस टू इट कि ग्राउंड पे काम हो गया और हमने इनके विजुअल्स और उसका जो वर्क डन है वो भी आया है और इट इज नाउ इन रेडीनेस मोड। तो क्या अंदाजा है कब तक इसका इफ्तिताह हो पाएगा? अब इसका जो अपना मंत्रालय है, अपना कमिश्नर है, अपना डायरेक्टर है जल जीवन मिशन का, तो दे विल टेक द कॉल नाउ। बट एज फार एज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न, एज फार एज माई पर्सनल इंटरेस्ट आर कंसर्न, द हार्ड वर्किंग टीम ऑफ जल जीवन मिशन, द PHE department, all people have worked very hard. Now I think by ending March it will be almost Eid day, the other day or the other week. तो इंशाल्लाह रहमान sooner than later ये अब लॉन्च हो गई है। तो इट इज ईद गिफ्ट फॉर पीपल, जैसे मैंने आपको बोला भी था कि ये ईद के लिए इनका गिफ्ट है और इनमें जो भी कवर एरिया करने थे वो हमने करा दिया है सारा। ओनली इट इज लॉन्चिंग एंड फॉर्मल इनॉग्रेशन, क्योंकि इसमें जो अब लाइबिलिटीज होंगी फाइनेंशियल या दूसरी, तो वो तो अब डिपार्टमेंट कॉल लेकर कि वी कैन नॉट टेक दिस प्रिविलेज हम इसको इंतजार करेंगे। वी आर ओनली मैन ऑन द ग्राउंड हु मेक द थिंग्स वर्क एंड गेट इट डन ऑन द ग्राउंड जीरो। तो अब डिपार्टमेंट के हेड्स हैं जो मिनिस्ट्री है वो आएंगे इंशाल्लाह रहमान, उनके साथ भी पैचअप करेंगे अपने डिपार्टमेंट के लोग। तो सूनर और लेटर बाय नेक्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तो ये लॉन्च हो जाएगी। ये गुजरियाल वाटर सप्लाई स्कीम जो है ये हमने आपकी नोटिस में लाई, आपने इसमें कार्रवाई की, फौरी तौर इस पे काम करवाया, तो क्या सूरत हाल होगी बाकी दूर दराज इलाकों की स्कीमों का जहाँ जो आपकी नोटिस में नहीं आती होंगी? ये लैंग्वेजिंग स्कीम थी, इसमें कुछ बोटलनेक्स थे वो हमने रिमूव कराए, वरना अगर एक नई स्कीम होती है तो उसको 1 साल या 2 साल में निकल जाती है। लेकिन अब ये लैंग्वेजिंग थी, ये पहले ही लैंग्वेजिंग थी, तो आई गिव क्रेडिट ऑफ इट टू शहरबीन, टू द पीपल, टू द सोशल वर्कर्स हु ब्रॉट इट इनटू माय नोटिस। अगर मैं नहीं करता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मैंने किया तो लोगों को फर्क पड़ता है, पीपल विल गेट बेनिफिट, लोगों का फायदा हुआ, शहरबीन का नाम बड़ा हो गया और अल्टीमेटली सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड। अगर मेरे फोन से ये काम हो गया तो आई गिव दिस क्रेडिट टू शहरबीन, टू मकसूद साहब हु इज नाउ रिटायरिंग ऑन 31st ऑफ मार्च। लेकिन जाते जाते आपने अपना नाम गुजरियाल में और कोपारा में मौजूद रखा, तो सैल्यूट टू यू, टू ऑल एक्स ऑफ शहरबीन, टू सोशल वर्कर्स, टू PHE एंड टू जल जीवन मिशन, दैट ऑल we all joined our hands and efforts to make this Gujrial scheme a reality, a functional scheme which people will memorize for all times to come. गुजरियाल वाटर सप्लाई स्कीम तैयार, महकमा जल शक्ति जल्द इफ्तिताह करेगा। एडिशनल डेवलपमेंट कमिश्नर कुपवाड़ा मोहम्मद रऊफ रहमान। PDP लीडर अल्ताफ अहमद मलिक ने हुकूमत से मुतालबा किया कि बिजली एमनेस्टी स्कीम में मजीद तोसी की जाए ताकि बिजली सार्फिन किस्तों में अपनी बकाया फीस अदा कर सकें। अल्ताफ मलिक ने वज़ीर आला से अपील की है कि 31 मार्च को लोगों के बिजली कनेक्शन न काटे जाएं।
हक्कानी मेमोरियल ट्रस्ट जम्मू कश्मीर की जानिब से दारुल उलूम हक्कानिया सोएबुक में नज़ुल कुरान कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में मुकाबले हुस्न क़िराअत का एहतमाम हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि इंतखाबात के दौरान किए गए तमाम वादों को एक एक करके पूरा किया जाएगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आज बड़गाम में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनके हमरा नासिर असलम वानी, आगा सईद महमूद और तर्जुमान आला तनवीर सादिक भी थे। बाद में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने रैनावारी जाकर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राजा मोहम्मद तस्लीम के अहल खाना से भी ताज़ियत की। समीन एनएचए मुलाजमीन यूनियन ने 29 मार्च 2025 को सुबह 10 बजे से दिन के 12 बजे तक कलम छोड़ हड़ताल का ऐलान किया है और ये हड़ताल अपने जायज मुतालबात को पूरा कराने के सिलसिले में की जा रही है। एनएचए मुलाजमीन का कहना है कि जहां उन्हें कलील उजरत पर काम करना पड़ रहा है, वहीं जम्मू कश्मीर सरकार उन्हें वक्त पर उजरतें देने और उनके बारे में महाराष्ट्र की तरह एक पॉलिसी तरतीब देने में नाकाम है, जबकि वो और उनके साथी जम्मू कश्मीर के दूर दराज के इलाकों में ईमानदारी से मुश्किल तरीन हालात में काम करते आए हैं और उनका मुतालबा है कि उनके हक में एक पॉलिसी महाराष्ट्र की तरह तरतीब दी जाए। इसके साथ ही शेरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेज़बान और डेस्क एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर, शेरबीन के एडिटर और निगरां मकसूद अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज। याद है वो यकबस्ता